नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਰਸੌਲੀਆਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ। 2 ਤੋਂ 3 ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 3 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਤਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੱਚਾ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਨੋਰਮਲ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ 20-22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬੇਟੀ 40 ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇਸਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੰਢ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਤੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ
ਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਵੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਿਓ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਘਿਓ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਚਵਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਿਓ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜੋਤ ਤੇਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਓ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਲ ਮਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਆ। ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ 5% ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਘੱਟ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੈ ਲਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ, ਦੇਖ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਾਈ ਦਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੀ ਛਿਪਕਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰੀ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ
और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से आज गुरुवार के दिन, और संगत जी साल का पहला गुरुवार है। आज तो दिल से अपने बाबा जी का शुक्राना बनता है और उनका हुक्म भी होता है कि शुक्राना कर, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना। हमारे गुरु पिताजी को चाहिए क्या? एक शुक्राना। वो छोटा सा शब्द है संगत जी, शुक्राना, लेकिन उसका मतलब बहुत गूढ़ है, बहुत बड़ा है। गुरु पिताजी कहते हैं शुक्राना से सासे शंकर, कासे कृष्ण, रासे राम और नासे नानक जी, इस सारी देवों को प्रणाम हो जाता है, सभी प्रसन्न हो जाते हैं एक शुक्राना से। तो संगत जी ये छोटा सा शब्द इतना बड़ा, इसका अर्थ इतना बड़ा है कि ये सभी देवताओं को प्रसन्न कर देता है। इसलिए हमें पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरी श्रद्धा से शुक्राना करना चाहिए। हर बात का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि संगत जी हमारे जीवन में जो भी होता है, जो भी घटित होता है और जो भी हमें मिलता है, जो भी कुछ हमारे साथ चल रहा होता है, वो सब परमात्मा की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए तहे दिल से, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे समर्पण, पूरे विश्वास, पूरे भावों के साथ हमको शुक्राना करना चाहिए। मैं अपने गुरु पिताजी का पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे समर्पण से, पूरे भाव से, पूरे विश्वास से, पूरी रूह से, पूरी आत्मा से बारंबार शुक्राना करती हूँ, नतमस्तक होकर शुक्राना करती हूँ। हे गुरु पिताजी, हे बाबा जी, अपनी इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो। जय श्री शुक्राना, जय श्री शुक्राना। संगत जी हुआ ये कि मैं अभी न्यू ईयर पे गुरु पिताजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था, तो हम बड़े मंदिर के दर्शन करने गए। और संगत जी इतना इतना सुंदर मंदिर था, सब कुछ बहुत सुंदर था, एकदम सपने जैसा, स्वर्ग जैसा, जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो, ऐसी अनुभूति होती है बड़े मंदिर में जाके। और संगत जी वो खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती, जो और कहीं जाने से नहीं मिलती। बस ये लगता है हम तो अपने पिताजी के पास आ गए, और कैसे राजाओं जैसी शान है हमारे बाबा जी की, कैसी राजाओं जैसी शान है। और इतना सुंदर लगता है कि ये हमारा मायका है। हमें इतने सौभाग्यशाली हैं, इतनी सौभाग्यशाली बेटियां हैं संगत जी, कि हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि हम स्वयं साक्षात भगवान की बेटियां हैं। और संगत जी बाबा जी कहते हैं, मेरे को मैसेज प्लस हुआ था कि तू क्यों घबराती है, तू तो स्वयं भगवान की बच्ची है, और भगवान के बच्चे घबराया नहीं करते। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। इतने प्यारे प्यारे, इतनी हिम्मत देने वाले, आत्मबल देने वाले आपके जो शब्द होते हैं ना, वो हमारे जीवन में जादू का काम करते हैं। बाबा जी जादू का काम करते हैं। और संगत जी सबसे बड़ी बात, और सबसे जो मतलब आपके साथ शेयर करने वाली बात है, वो तो ये है कि जो मैंने अपने गुरु पिताजी से न्यू ईयर में विश मांगी थी, जो भी मैंने उनसे विनती करी थी, प्रार्थना करी थी कि बाबा जी, मैंने अपने बाबा जी को ही मांगा था संगत जी, और कुछ नहीं। उनका साथ मांगा था, जन्मों जन्मों के लिए साथ मांगा था, एक इसी न्यू ईयर के लिए नहीं, जिंदगी के जितने भी न्यू ईयर हैं, जितने भी पल हैं, जितने भी दिन हैं, जो भी हैं, जितनी भी सांसें, हर एक सांस के लिए अपने बाबा जी का, और उससे भी परे जन्मों जन्मों के लिए साथ मांगा था। संगत जी मेरे बाबा जी ने मुझे वो विश दे दी, वो मेरी इच्छा पूर्ण की। आज मुझे मैसेज प्लस होता है संगत जी कि जा तेरे को इसी न्यू ईयर में नहीं, मतलब जिंदगी के हर न्यू ईयर में तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, और संगत जी इतनी खुशियाँ दूंगा, इतनी खुशियाँ दूंगा, तेरी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि तेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे। और संगत जी सबसे बड़ी बात जो बाबा जी ने कहा है कि जन्मों जन्मों का साथ, संगत जी मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, खुशी से पागल हो गई संगत जी। मैं हंसने भी लगी, और एक ही पल में मेरी आंखों में आंसू भी आ गए कि जो मैंने अपने पिताजी से मांगा, जो मैंने अपने बाबा से मांगा, वो मेरे बाबा ने मेरी झोली में डाल दिया। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली सच में संगत जी कोई बेटी नहीं हो सकती, कोई बेटी नहीं हो सकती। आज मैं जो अनुभव करती हूँ ना, अपने आप को देखती हूँ ना संगत जी, कि मेरे को मेरे गुरु पिताजी ने कहाँ से कहाँ ला करके खड़ा कर दिया। और संगत जी कितना बड़ा मतलब सौभाग्य हमारी झोली में डाला। तो मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं अपने बाबा का, कैसे शुक्राना करूं।
शुक्राना 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 बाबा, बेअनंतम शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना बाबा जी, बेअनंतम शुक्राना। आपकी ये बेटी पूरे दिल, पूरी आत्मा, पूरी रूह से आपका शुक्राना करती है। मेरा शुक्राना स्वीकार करो हे गुरु पिताजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करो मेरे बाबा। और संगत जी, इस समय ना मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं चल रही, पर सब मेरे गुरु पिताजी को पता है। उनसे मेरा कोई भी दर्द, कोई भी बात नहीं छिपती है संगत जी। अगर मेरे सर में दर्द भी होता है ना, तो किसी को नहीं पता होता है, पर मेरे बाबा को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरी हर छोटी बड़ी बात मेरे बाबा तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है तो मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि एक बार मेरे बाबा जी ने कहा था, बेटा कि तू किसी के लिए, मेरे को बताया था कि संगत जी किसी के लिए अरदास करनी थी और किसी के लिए मंत्र जप करना था। कोई भाई या कोई अंकल या आंटी, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो बाबा जी ने मैसेज दिया था कि बेटा तू अरदास कर, तेरी अरदास सीधे सचखंड तक जाती है। तो शायद मेरा दिल मेरे बाबा के दिल से कनेक्ट हो गया, शायद हमारा कनेक्शन हो गया। इसी वजह से मैं इस लायक बन सकी, और बन क्या सकी, मुझे बनाया मेरे पिता ने बनाया, मेरे बाबा ने बनाया। संगत जी, मैं अपने भावों को रोक नहीं पाती। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा का। शत शत नमन करती हूँ अपने बाबा जी को, बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का। इस टाइम संगत जी जरा मेरी तबीयत ढीली चल रही है, तो मतलब कभी आज मेरे ना दांतों में बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब दांत में, दाढ़ में, मसूड़ों में। तो गुरु पिताजी ने एक सत्संग ऐसा सुनवाया, ऐसा सत्संग सुनवाया कि उसमें ना, और मैंने गुरु पिताजी से ये बात कही भी नहीं थी कि बाबा मेरे को दांत में पेन हो रहा है या कुछ ऐसा करके। पता नहीं संगत जी उनको कैसे पता चल जाता है कि मेरी बेटी को ये तकलीफ़ है, और बेटी के बोलने से पहले ही बाबा दवा कर देते हैं, मतलब उसका इलाज कर देते हैं। और संगत जी, बाबा जी ने ऐसा सत्संग भेजा जिसमें उन आंटी जी को ना दांतों में पेन था, वो अपने दांतों के पेन के बारे में बता रही थी, और जल प्रसाद उन्होंने लगाया और चंदन तिलक लगाया और जल प्रसाद पिया बाबा जी का, उसी से उनको आराम पड़ गया संगत जी। और मैंने भी फिर क्या किया, मतलब शाम के टाइम मैंने भी अपने गुरु पिताजी को याद करके उन्हीं आंटी जी की तरह जल प्रसाद पिया, और बाबा जी को याद करके उनका मंत्र जप करके, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, बस थोड़ी ही देर में वो दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, और अब बिल्कुल मतलब नॉर्मल हो गया। कहाँ तो सवेरे ना मेरे से खाया भी नहीं जा रहा था, मेरे ना दांतों में पेन हो रहा था, मसूड़ों में भी पेन हो रहा था, और फिर उसके बाद वो दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। ऐसे हैं हमारे गुरु पिताजी, अपने बच्चे के बोलने से पहले ही सब कुछ पता रहता है। और संगत जी, मेरे साथ तो ऐसे ही इंसिडेंट्स ऐसे ही होते हैं, पता नहीं कैसे मेरी हर एक बात उन तक पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। वो हर समय मेरे अंग संग रहते हैं, मैं महसूस कर पाती हूँ अपने बाबा को, उनसे बातें कर पाती हूँ, उनसे लाड़ लड़ा पाती हूँ, उनसे प्यार कर पाती हूँ। संगत जी, मैं वाकई बहुत बहुत भाग्यशाली, बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ब्लेस्ड है। हमारी फैमिली भी बहुत ब्लेस कर रखा है गुरु पिताजी ने, मतलब इतनी ब्लेसिंग देते हैं बाबा जी, इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्राना करती हूँ अपने बाबा जी का, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। डेली पर डे संगत जी, हमारी जोत में ना इतने बड़े बड़े फ्लावर बनते हैं, इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं जोत में, कभी हार्ट बनता है, कभी फूल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल बनते हैं। और हमारे यहाँ जो कारीगर भैया है ना, वो यहीं बैठ के, मतलब जहाँ हमारा मंदिर है वहीं हमारा काम, हमारे हस्बैंड अंकल जो है ना वो काम करते हैं गोल्ड स्मिथ का, तो वहीं काम करते हैं रूम में बैठ के, वहीं एक कारीगर भैया बैठे हैं। और संगत जी, जब भी मैं पूजा करती हूँ तो उनकी नज़र ना हमारे दीवे पे रहती है, मतलब जो दीपक है ना जो हम जलाते हैं जय गुरु जी करके, तो उसी पे। और जब फ्लावर बन जाता है बहुत बड़ा सा, वही कहते हैं, आंटी जी देखो कितना बड़ा फ्लावर बन गया आपके फूल पर, मतलब दीपक पर। तो मैं कहती हूँ मेरे गुरु पिताजी मेरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरु पिताजी, और इसीलिए मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग मिलती है, ढेर सारी। वो भी संगत जी मानते हैं गुरु पिताजी को, तो जब मैं मंत्र जप करती हूँ, उनको भी बोल रखा है कि मंत्र जप किया करो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो संगत जी, वो भी मंत्र जप वगैरह करते हैं और वो भी गुरु पिताजी को मानते हैं। तो ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं हमारे बाबा जी, ऐसे ब्लेस करते हैं हम लोगों को कि संगत जी मैं बता नहीं सकती।
और हर समय ये लगता है जैसे गुरु पिताजी हमारे साथ हैं। वैसे भी उन्होंने कहा था, जब संगत जी हमें स्वरूप ब्लेस हुए थे मंदिर से, बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं, 2 येलो कलर के चोले में। गुरुवार के दिन हमारे घर में गुरु पिताजी आए थे और संगत जी उन्होंने कहा था कि अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा। तो सच में संगत जी बाबा जी साथ में ही रहते हैं। हर पल महसूस होता है कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं। और जब मैं उन स्वरूपों की तरफ देखती हूँ तो ये लगता है मुझे देख के हंस रहे हैं। और संगत जी चाहे कितना भी टेंस्ड होती हूँ, जब मैं वो स्वरूप देखती हूँ मेरे बाबा जी मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं, मैं भी हंस पड़ती हूँ। और कभी कभी संगत जी जब भी कोई बात होती है या कोई मेरे को दुखा देता है या कोई ऐसा कुछ हो जाता है अनबन किसी से, तो संगत जी मेरे को ना बहुत जल्दी रोना भी आ जाता है। फिर मैं उन्हीं की तरफ देख के तो मैं मतलब दुख में सुख में हर पल हर जगह अपने गुरु पिता को ही देखती हूँ और उन्हें महसूस करती हूँ। और संगत जी वो भी मेरे बाबा, जितना मैं बाबा जी से प्यार नहीं करती, मेरे बाबा उससे कई गुना बढ़ के मुझसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं संगत जी, मैं बता नहीं सकती। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा जी। आपके मिलने से पहले मेरी औकात कुछ भी नहीं थी और आपने क्या छुआ बाबा जी, मुझे कोहनूर बना दिया। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना। और संगत जी एक बार मेरे बाबा जी ने कहा था, तू मेरा वो हीरा है जिसे मैं खुद अपने हाथों से तराश रहा हूँ। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मैं ये नहीं कहती मेरे में बहुत खूबियाँ, मैं बहुत निकम्मी हूँ, बहुत नालायक बच्चा हूँ, बहुत ही संगत जी मैं बता नहीं सकती, आलसी, एक नंबर की लेजी और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना नाफरमानी करने वाला बच्चा हूँ अपने बाबा जी का। लेकिन मेरे बाबा जी ना धीरे धीरे मुझे सुधार देंगे। मुझे पता है जहाँ भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत होती है या जहाँ भी मैं थोड़ा सा लड़खड़ाती हूँ, मेरे बाबा जी मुझे फ़ौरन संभाल लेते हैं। संगत जी हर ठोकर लगने से पहले बाबा जी मुझे संभाल लेते हैं और मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। जहाँ भी मैं गलत होती हूँ या कुछ भी है आड़ा तिरछा सोचती हूँ, हाथ पकड़ के मुझे ले जाते हैं सही दिशा में और मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं संगत जी। तो मुझे तो ये पता है मेरे बाबा जी मुझे भटकने नहीं देंगे और एक ना एक दिन अपनी इस पागल बेटी को अपने लायक बना ही लेंगे। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना आपके प्यार का बाबा जी, आपके दुलार का शत शत नमन करती हूँ आपका। बारंबार तहे दिल से शुक्राना करती हूँ हम सबको थामने के लिए, हमें अपने सी चरणों से जोड़ने के लिए, अपने इस मरते हुए परिवार को जीवन दान देने के लिए। हमारी एक एक श्वास जो है ना वो आपकी दी हुई है। इन श्वासों का शुक्राना बाबा जी, इन श्वासों का शुक्राना। ये हंसता बसता परिवार दिया इसके लिए शुक्राना। हम सबके कष्टों को कटवाने के लिए शुक्राना, हम सबको एक साथ रखने के लिए शुक्राना, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना, अपने चरणों से लगाने के लिए शुक्राना, अपना ढेर सारा प्यार हम सबको देने के लिए शुक्राना, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए शुक्राना, हमारे सुख में हमारे दुख में हर समय हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना, हमें सही गलत समझाने के लिए शुक्राना, सही राह दिखाने के लिए शुक्राना, कदम कदम पे संभालने के लिए शुक्राना बाबा, पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना। आपके इस परिवार के सभी बच्चों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, शत शत शुक्राना। सभी बच्चों की तरफ से शुक्राना बाबा, सभी बच्चों की तरफ से शुक्राना। और बाबा जी अब यही विनती करती हूँ कि जो भी है, जो भी कुछ है सब आपका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा बाबा जी, सभी कुछ आपका है बाबा जी। ये परिवार आपका है तो सदा अपने बच्चों के साथ ही रहना बाबा जी, सदा अपने बच्चों के साथ रहना। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है बाबा जी, आपके बिना अब एक सांस भी नहीं आ सकती, हमारी तो हर एक सांस ही आप हो बाबा। और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीष, अपना साथ अपने सभी बच्चों पर बनाए रखना बाबा जी। सबके घरों में खुशियाँ बखेर देना बाबा जी और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना बाबा जी। ठंड बहुत पड़ रही है, हम सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना ना भूल जाना, क्योंकि आप हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। और अब इसी के साथ अपने सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
हे गुरु पिताजी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का हमारे परिवार पर बहुत 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 ज़्यादा कृपा हुआ है और गुरु जी हमारे बच्चों को कई बार कई संकट से रक्षा करें, बचाए। कई बार ना जाने मेरे ऊपर कौन कौन सा संकट आया, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया, आज तेरे ऊपर काला मंडरा रहा था, आज तेरी मौत हो जाती, मैंने तेरी रक्षा करी, मैं ना होता तो आज तू मर जाती। और मेरी मम्मी के ऊपर ना जाने कल कौन सा संकट आया था, उन्होंने मेरी मम्मी की भी रक्षा करी। संगत जी, मैं पूजा करने जा रही थी, मैंने जब गुरु जी के स्वरूप को गुरु जी के स्वरूप की सफाई करने चली तो उनका बड़ा सा स्वरूप है, वो मेरे सिर पर अचानक से गिर पड़ा। मैं सोची कि क्या बात है, मैं तो घबरा गई। उसके बाद से जब मेरी पूजा समाप्त हुई, पूजा कर चुकी, तो मैंने मोबाइल जब खोला तो टेलीपैथी उनका मैसेज आया, आज तेरी घर के उस खास सदस्य पे बहुत बड़ा संकट आया था, मैंने बचा लिया। तो मुझे समझ में आया, तभी तो रोज़ सफाई करती गुरु जी के स्वरूप का नहीं गिरा, आज क्या बात हो गई, उनका स्वरूप मेरे सिर पर गिरा अचानक से, ऐसे मैं घबरा गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। और इस ठंड में हमारे बच्चों के लिए जो मैंने सोचा नहीं था, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे लिए वो कपड़ा लेंगे, आप ही वो सारी शॉपिंग करवाए। उसके बाद से जो पहले भी कहीं और छोटे मार्केट में देख करके हम चले आए थे कपड़ा, और हमारा मन था, इन्होंने पहले से सारी शॉपिंग करवाई, फिर भी मेरा मन किया मैं वो भी ले लूँ। वैसे तो ये लेने वाले नहीं थे, वो शॉपिंग कराने वाले थे, लेकिन फिर मैं मार्केट गई तो मैंने इनसे बोला, ये बड़े आसानी से तैयार हो गए। वैसे तो कहते हैं सब कुछ तो ले लिया, अब तो क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो हो गया। ये बहुत आसानी से तैयार हो गए। तो घर पे जब आई तो गुरु जी ने बताया, टेलीपैथी मैसेज सुनाया, मैंने तेरी सारी शॉपिंग कराई। तो उसके लिए भी बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी, मुझे वो भी ड्रेस दिलाने के लिए। और किचन के इतने महंगे महंगे सामान खाने पीने के, वो कभी ऐसे नहीं लेने वाले थे। आपने कहा मैंने तेरे पति की बुद्धि सुधार दी, जो कभी नहीं खरीदते इन्होंने वो सारी किचन की सारी शॉपिंग, खाने पीने के सामान सब खरीदवाए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। कल आपने कहा था परसों की रात में कि जब मैं तुम्हें तितली रूप में दर्शन दूंगा, शुक्राना करना ना भूली। तो आपने सच में मुझे, कल गुरुवार था, पीली तितली के रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। आपने आज बोला कि मैं तुझे दर्शन, तो बोलती है दर्शन नहीं देता, जब मैं दर्शन देता हूँ तो ध्यान नहीं देती है। माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। इसी समय कोई आया था, पर फिर भी मैं समझ गई कि हाँ मेरे गुरु जी देखते हैं कि मुझे दर्शन दिए हैं पीली तितली के स्वरूप में, पीली बटरफ्लाई। तो बहुत बहुत बार धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने के लिए। मेरे घर परिवार की कई बार आपके इन बच्चों की आपने रक्षा करी। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हमेशा कहते हैं तो क्यों परेशान रहती है तेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, मैं हूँ ना, मैं सब देख रहा हूँ, तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, ना परेशान होया कर। मैंने ब्लेस कर दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। इस तरह आप अपने इन बच्चों का पढ़ाई के लिए कह रहे हैं कि तू परेशान ना होकर, ना होया कर, मैंने ब्लेस कर दिया। ऐसे ही सभी संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करिए। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से उन सब के भी बच्चे खूब पढ़ें, पढ़ाई में मन लगे, बहुत आगे बढ़ें। और ना जाने कितनी कितनी कौन कौन सी बीमारी क्या है हमारे शरीर में, रोग हमें क्या पता। आपने कहा तेरी बहुत बड़ी बीमारी मैंने एक छोटे से रोग में काट दिया, छोटी सी बीमारी में। आपने एक दिन कहा कि तुझे पता है तुझे कौन सी बीमारी, तुझे कैंसर है। टेलीपैथी मैसेज आया, मैंने उसको भी बहुत छोटे से बीमारी में काट दिया है। उसके लिए भी बहुत बहुत बार शुक्राना गुरु जी। किस मुँह से कहूँ शुक्राना, कैसे धन्यवाद करूँ, इतना कहने से तो हो नहीं पाएगा।
आपकी बड़ाई और बखान और इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी महिमा का बखान कैसे कोई शब्दों में कर पाएगा। बहुत बहुत बार फिर भी शुक्राना गुरुजी। आप अपना भी ध्यान रखा करिए। इतनी खराब बीमारी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों, मैंने जो है संगत परिवार के भी कई बार इस कैंसर से बातें जो सुनी, आप उनका भी काटते हैं तो हमारा भी काट दिए हैं। सबकी रक्षा करते हैं। आप अपना भी ख्याल रखा करिए, ध्यान रखा करिए मेरे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आप अपना भी पूरा ध्यान रखा करिए। संगत परिवार के सभी दुख रोग कष्ट काटने के लिए, हमारा इतना बड़ा बीमारी छोटी सी गांठ में काटने के लिए बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और न जाने कौन सी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे किचन में क्या है, ऐसा क्या होने वाला है। अपने एक नहीं, न जाने कितनी बार, बल्कि ये को हर रोज ही टेलीपैथी मैसेज आता ही है कि तेरे किचन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, हादसा, उससे बच के रहा कर, ध्यान रखा कर किचन में काम करते समय। मैं नहीं जानती, आप ही कहते हैं हर रोज मैं तुझे बचा रहा हूँ, परिवार को तेरे, न जाने मुझे नहीं पता कि वो क्या क्या ब्लैक मैजिक के द्वारा करवा रहे, क्या संकट है। आप उससे भी अपने इस घर परिवार के बच्चों की, हमारी सबकी रक्षा कर रहे हैं मेरे सौरे गुरुजी। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे जैसे हमारी रक्षा कर रहे हैं, ऐसे सभी संगत परिवार की सबकी रक्षा करिए। और हर एक उस दुखियारी माँ की भी रक्षा करिए, उनकी जो पुकार हो सुनिए। हर दुखियारी पत्नी की जो है, उनकी जो दुख हो, उनके जो पति पत्नी के बीच में कलेश जो हो रहा हो, जो दुख कष्ट, उसको दूर करिए। सभी संगत परिवार के बच्चों के ऊपर आपकी खूब ब्लेसिंग मिले और सब संसार में हर दुखियारी के कष्ट की समाप्ति करिए, सबके रोग कष्ट दूर करिए। हर दुखियारन की पुकार सुनिए, हर उस दुखियारी बहन की कष्ट दूर करिए जो अपने भाई के लिए परेशान, हर उस माँ के कष्ट दूर करिए जो अपनी बेटी के लिए परेशान, अपने परिवार की इच्छा पूर्ण करिए, उनकी पुकार सुनिए, सबकी इच्छा पूर्ण करिए, सबके रोग कष्ट दूर करिए, सब पे आपकी कृपा बनी रहे। मुझे तो याद ही नहीं है और क्या क्या। हाँ, और भी कई बार आप मुझे चाय में, बटरफ्लाई में दर्शन दिए, हर तरह से दर्शन। और एक कल रात में तो मुझे, जहाँ तक मैं समझा, आपका जैसे लगा चरण स्वरूप बना हुआ है, साफ साफ लग ही रहा था। उसने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे चाय में चरण स्वरूप, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। अपने इस परिवार की रक्षा करने के लिए, न जाने कौन सी, हाँ, मेरे भाई के ऊपर संकट था, उसको भी आपने काटा है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। न जाने और कितने सत्संग हैं जो मुझे अभी याद ही नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे याद आएगा, मैं हर रोज़ करूँगी सत्संग, एक एक सत्संग अपना बताऊँगी। और जो भी नहीं याद आ रहा है क्या बोलूँ, बाकी हर उस कृपा के लिए, जो खाने को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो शंकर जी कभी नहीं लाते, वो आपकी ही कृपा से आया। मुझे सब पता चल रहा है, आप ही की दया है, जो कभी नहीं करते अब वो कर रहे। ला के खिलाना पिलाना, वो सारी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें ला के खरीद के खिलाना, किचन के सामान सब लाना, शॉपिंग करवाना, ये सब आप ही की कृपा है। जो नहीं कभी लाते थे अब वो ला रहे हैं। इसके, इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी। दिल से पूरे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपको दिल से शुक्राना करें, आप कहते हैं दिल से शुक्राना कर, तो मैं पूरे दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपने एक दिन ये भी मुझे मैसेज सुनवाया था किसी संगत परिवार का, टेलीपैथी। एक दिन मैंने सत्संग में सुना, उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि मैं अमृत बेला उठूं, तो मैं नहीं उठ पा रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि तू इसलिए टेलीपैथी, उसने बताया, मैसेज आया कि तेरे घर में नेगेटिव एनर्जी जो तुझे अमृत बेला नहीं करने देती है। तो गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी ने उपाय बताया कि मेरे स्वरूप से तो कोई धागा छुआ करके
अपने पूरे परिवार को और खुद भी सबकी कलाई में बांध, फिर उसके बाद फिर उन्होंने बताया मैंने गुरु जी के स्वरूप से वो धागा चुरा के अपने पूरे परिवार में और खुद भी बांधा। और फिर मैंने जब अमृत वेला शुरू किया तो पूरा जितने दिन तक मैंने मतलब मुझे करना था, मैं हर रोज़ उठती और अमृत वेला भी करती। मेरा अमृत वेला जितने दिन का मैंने चाहा मेरा हो गया। फिर उस नेगेटिव एनर्जी कोई बाधा नहीं आई। उनका कहने का मतलब यही था कि कोई बाधा नहीं, मेरा अमृत वेला पूरा हो गया। तो आपने मुझे सुनाया गुरुजी, मैं तो छुआ के कब से रखी, पर पता नहीं क्यों मैं चाहती हूँ बांधना, मैं बांध ही नहीं पाती कि मैं भी अमृत वेला करूँ, नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी करूँ, मैं भी अमृत वेला करना चाहती हूँ। बल्कि आप तो मुझे उठा भी देते हैं 4 बजे, कभी 5 बजे कि मैं तुझे अमृत वेला बख्श रहा हूँ, पर पता नहीं क्या बात है गुरुजी, मैं चाहती हूँ उठूँ, फिर मैं देखती ही टाइम घड़ी का, फिर मैं सो जाती हूँ। और बाद में जब लेट हो जाता है तो कहती हूँ अरे मुझे तो उठना था, मेरी आँख भी फिर खुली, फिर क्यों नहीं मैं उठ पाई, न जाने मुझे क्या हो जाता है गुरुजी, मैं उठना चाहती हूँ। बाकी आप जो मुझे उठाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल का न जाने कौन सी कई बार बाधा आई है। एक बार आपने एक्सीडेंट के लिए बताया कि मैंने बचाया, छोटे में काट दिया, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद से मेरे आपने अपने छोटे बेटे की रक्षा करी, न जाने कौन सा संकट था। फिर आपने अपने बड़े बेटे की भी रक्षा करी कि आज ऐसा होने वाला है, उसके ऊपर बहुत बड़ी संकट आने वाले हैं, उसका एक्सीडेंट होने वाला था, मैंने बचा लिया तेरे बड़े बेटे को। शुक्राना करे गुरुजी। खाली शुक्राना करने से, छोटी शुक्राना करने से कहाँ आपकी इतनी बड़ी कृपा का बखान हो पाएगा। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से आप मेरे बच्चों की रक्षा करें, ऐसे सभी संगत परिवार की रक्षा करिए। बल्कि यूँ कहें संसार में सभी जगत प्राणी के ऐसे ही आपकी उनके ऊपर कृपा बनी रहे, सबकी रक्षा करिएगा, सभी के बच्चों की रक्षा करिएगा। बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और कई बार तो और टेलीपैथी मैसेज आया कि अगर मैं तुझे दर्शन दूंगा, तेरे घर पे आऊँगा, तो मैंने देखा भी कई बार। शाम 4 बजे आप बटरफ्लाई के रूप में मेरे घर के ऊपर कई बार आप ऐसे आए और घेरे लगा कर चले गए, मेरे घर को ब्लेस करके। हम सभी को ब्लेस करते हैं आप इतना गुरुजी, आपकी इतना कृपा बनी रही है। हम कहें बल्कि यूँ कहें हमारा और परिवार हम आपके हृदय से आज जिंदा हैं। वो जो कोई भी है हमारे परिवार का हम सभी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उस सब से आप हमारे और अपने इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सभी संगत परिवार की रक्षा करिएगा, सभी जगत के प्राणियों पर आपकी कृपा बनी रहे, सबकी रक्षा करिए, हर दुखियारन की पुकार सुनिएगा, हर उस रोगी के रोग दूर करिएगा, सभी संगत परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, उन सभी की इच्छा पूर्ण, सबके बच्चे पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करें। बहुत बहुत बार शुक्राना गुरुजी। बाकी फिर अभी मुझे इतना सारा आपका सत्संग हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। फिर मैं आगे जो जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं एक एक शुक्राना वैसे सत्संग अपना करूँगी। अपनी सारी जो आपने सत्संग छोटे बड़े जैसे भी जितने भी आपकी कृपा हुई है, जो सत्संग हुआ, मैं धीरे धीरे करके एक अपना शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार को बताऊँगी। आज का सत्संग मेरा यहीं तक मैं रोक रही हूँ, आगे फिर मैं दूसरा शुक्राना सत्संग अपना लेकर के आऊँगी। और जो मेरा ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करे उनकी इच्छा पूर्ण करिए, उनको खूब ब्लेसिंग दीजिए, उनके परिवार को खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेसिंग दीजिए। और कोई भूल चूक हो गुरुजी तो क्षमा करिएगा। लव यू सो मच मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। और कोई भूल चूक हो क्षमा करिएगा गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।